Good morning, students. Today we are going to start chapter number 16, the last lesson of our book Olivia. The name of the chapter is The Elves and the Shoemaker. We have learned about a proverb which says honesty is the best policy. We have read it many times, but through this video and the story, we will be knowing how this proverb gets true. So let us start the reading of this chapter, The Elves and the Shoemaker. First of all, let us know about the characters of the story. First character of the story is Joe, who is a shoemaker. Bidey, his wife, and two elves. What are elves? Small in size persons, small in size you can say बोना, जो बोने होते हैं उन्हें इल्स कहा जाता है. पिप एंड कीप. लेट्स start the play. This is the scene 1 of the play. Joe and Bidey are talking to each other, having their supper. Here you can see blue colored word supper. What do supper means? Supper means dinner. Supper means food of night time or dinner. So they were talking to each other while having their supper. So Joe was saying something to Bidey. Joe, vegetable is so tasty. Bidey, you work so hard, but we don't have enough to live upon. तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो फिर भी हमारे पास गुजारा करने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं. जो नेवर माइंड बाइडी, वी आर पुअर बट ऑनेस्ट. कोई बात नहीं, हम पुअर हैं बट ऑनेस्ट हैं. बाइडी, यस आई नो. हाँ बिल्कुल. जो, लेट्स गो टू बेड, इट्स क्वाइट लेट. अब चलकर सोते हैं, बहुत देर हो चुकी है. जो एंड बाइडी गो टू बेड. जो's concise is clear and his heart is light. He admits all his troubles so he takes sound sleep. वो दोनों बेड पर जाते हैं. कंसाइज मीन्स उसकी अंतरात्मा. जो की अंतरात्मा बिल्कुल क्लियर थी, उसका हार्ट लाइट था. वो अपनी सारे ट्रबल्स को भूल जाता है और साउंड स्लीप, अच्छे से सो जाता है. लिविंग ऑल हिज केयर्स टू हेवन एंड सून फेल एस्लीप. सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर वो आसानी से साथ ही सो जाता है. नाउ सीन 2. It was scene 1, scene 2 as it is a play. So scenes are here. Scene 2, you can see in the picture a workshop is there. It's midnight. Midnight हो चुकी है, रात के 12 बजे के बाद. Two elves, Pip and Kip, come down through the chimney into Shoemaker's workshop. दो बोने पिप और कीप आते हैं चिमनी से वर्कशॉप, शूमेकर की वर्कशॉप में. दे आर ऑलमोस्ट नेक्ड. वो एक तरह से बिल्कुल नेक्ड थे, बिना कपड़ों के थे. पिप, ओ वाओ, व्हाट्स दिस. बहुत सुंदर, ये क्या है. किप, इट्स अ शूमेकर्स वर्कशॉप. ये शूमेकर की वर्कशॉप है. पिप, ओह दैट्स नाइस, आई लाइक दिस प्लेस. पिप क्या कहता है, बहुत अच्छे, मुझे ये प्लेस पसंद आया. किप, सो डू आई, ऐसा ही मुझे भी. पिप, बट वाई हैव वी कम हेयर, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं. वट शैल वी डू, हम यहाँ क्या करेंगे. दे सेट अपॉन द शूमेकर्स बेंच. वो शूमेकर के बेंच पर बैठ जाते हैं. किप, सी हेयर, यहाँ पर देखो. द लेदर इज कट एंड रेडी. लेदर कटा हुआ है, रेडी है. कम ब्रदर, लेट्स हेल्प द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शूमेकर. ब्रदर आओ, हम ऑनेस्ट शूमेकर की हेल्प करते हैं. पिप, yes, let's do so that shoemaker can sell the pair of shoes and buy some more food. बिल्कुल, हम उसकी हेल्प करते हैं. हम शूज़ बनाते हैं ताकि वो उसे बेच सके और उसे कुछ और पैसे मिल सके. कम ऑन, वी मस्ट हरी. जल्दी करो. लेट्स स्टार्ट आ वर्क. हमें अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए. दे टेक अप
all the work that was cut out and began to play with their little finger. जो भी कटा हुआ था लेदर उसने उन दोनों ने स्टार्ट किया अपनी छोटी छोटी उंगलियों के साथ. Little fingers stitching, wrapping and tapping away at such a rate that do all the work in minutes. Wrapping and tapping, this is a sound. अपनी छोटी छोटी उंगलियों से स्टिच करते हुए आवाज़ करते हुए उन्होंने वो काम मिनटों में कर दिया. Now scene 3. Joe and Biddy are sitting on Christmas Eve near the fire and chatting together. Joe and Biddy क्रिसमस ईव पर आग के पास बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं. चैटिंग मीन्स टॉकिंग. जो I should like to sit up and watch tonight that we may see who is it that comes and does my work for me. जो मुझे आज रात बैठना होगा और देखना होगा कि वो कौन है जो आता है और मेरा काम कर जाता है मेरे लिए. Biddy, I like the thought. मुझे आपका आइडिया पसंद आया. वो जो एंड बाइडी हाइड themselves in the corner of the room behind a curtain. दोनों के दोनों अपने आप को रूम के कॉर्नर कर्टन के पीछे छुपा लेते हैं. पिप लेट्स स्टार्ट द वर्क. वो बोने दोबारा आते हैं. पिप कहता है कि वर्क स्टार्ट करना चाहिए. किप ओ शो बिल्कुल. टैप 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 हैमर ऑन लेदर स्टिच 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 नीडल एंड थ्रेड. वो टैप करते हैं, हथौड़ा मारते हैं लेदर पर, स्टिच करते हैं नीडल और थ्रेड के साथ. जो फ्रॉम द बिहाइंड कर्टन, जो कर्टन के पीछे से. हु आर वी लिटिल पीपल. ये छोटे लिटिल पीपल कौन है. वी मीन्स स्मॉल इन साइज. वी मीन्स स्मॉल इन साइज. बाय सरप्राइजिंगली चौंक कर. आई डोंट नो मुझे नहीं पता. As it was daybreak, they bustled away as quick as lightning. जैसे ही दिन होना शुरू होता है, उजाला होता है, वे लाइट की तरह गायब हो जाते हैं. Now scene 4. Joe and Biddy are sitting in the kitchen and talking. वो किचन में बैठे हैं, बात कर रहे हैं. जो these little we have made us rich, so we ought to be thankful to them. Do them a good turn if we can. इन दोनों ने हमें रिच बनाया है, हमें इनको थैंक करना चाहिए और इन्हें बदले में कुछ देना चाहिए. बाइडी यस वी मस्ट थैंक देम. बिल्कुल हमें इनको थैंक करना चाहिए. जो बट वट वी कैन डू फॉर देम. लेकिन हम क्या कर सकते हैं. Biddy, I'm quite sorry to see them run about as they do, and indeed, it is not about descent, for they have nothing upon their backs to keep off the cold. मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ उनके लिए कि वो एकदम से भाग जाते हैं. ये डिसेंट नहीं है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं. इतनी ठंड में भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं. I'll make tunics and trousers for each of them and you make a little pair of shoes. मैं उनके लिए ट्यूनिक और ट्राउज़र बना दूंगी और तुम शूज़ के पेयर बना देना उनके लिए. जो yes yes I'll make nice little shoe for them. बिल्कुल मैं उनके लिए प्यारे से जूते बना दूंगा. Let's start working right now. ठीक है तो अभी काम करना स्टार्ट करते हैं. At midnight Pip and Kip came in dancing and skipping hopped around the room. जैसे ही रात होती है पिप और किप आते हैं डांस करते हुए इधर उधर घूमते हुए. एंड देन went to sit down to their work as usual. और अपना काम करने बैठ जाते हैं. But when they saw the clothes laying for them. पर जब वो देखते हैं कि क्लोथ्स उनके लिए रखे हुए हैं. They laughed and chuckled to see Mom mightily delighted. वो हंसते हैं, धीमी आवाज में हंसते हैं, खुश होते हैं. Then they danced, capered and sprang about as merry as could be. At last they danced out at the door. और वो ड्रेस करते हैं खुद को, वो कपड़े डाल लेते हैं, ड्रेस करते हैं खुद को और डांस करते करते वहाँ से निकल जाते हैं. Away over the green. The good couple saw them no more. अब वो उस कपल को
नहीं दिख रहे। बट एवरीथिंग वेंट वेल, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था विद दैम फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज दे लिव। अब वो उन छोटे बोनों को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके लिए सब ठीक हो गया था। नाउ दे वर रिच। So, students, you have gone through the chapter and you have seen how the poor couple who was poor but honest, how God helped for them. Now they were a happy and rich couple. So, the proverb proves honesty is the best policy. I hope you have understood the chapter. Read it twice. Thank you. Have a good day ahead.